Good morning, dear student. Seema Sehgal this side. Today I am here to tell you about the topic basis of lesson number 2 in class 10th science. In the previous video, I told you about the acids and I told you about the acid definition according to the Arrhenius. So if you're talking about the base, what do you mean by base according to the Arrhenius? Bases जो हैं they are the substances which dissociate into water to give hydroxide ions. बेसिस वो substances हैं जिन्हें जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं. ये डेफिनेशन आर्नियस साइंटिस्ट ने दी थी. फॉर एग्जांपल हम इसमें ये एग्जांपल देख सकते हैं NaOH aqueous gives you Na plus aqueous plus OH minus aqueous. What does this aqueous indicate? Aqueous indicates that this solution NaOH is in the water. कि water is present. That is why we have written aqueous here. So bases are those substances which dissociate into water to give the hydroxide ions. And what about all? All bases are not soluble in water. जो सभी bases होते हैं they are not soluble in water, but some bases are soluble in water. For example, which bases are soluble in water? KOH, NOH, these are the soluble in water. And there are some also examples which are insoluble bases, FeOH whole thrice, CuOH whole thrice. This is known as the ferric hydroxide, copper hydroxide. So we can say the bases which can dissolve in water, they are known as the alkalis. All alkalis are the bases, but all bases are not alkali. This is the very important conclusion कि bases जो water में soluble हैं उन्हें हम alkali कहते हैं. तो सारे alkali तो bases हैं लेकिन सारे bases जो हैं वो alkali नहीं है. Only those bases are alkali which can dissolve in water. Now see, this next line is also very important. Dissolution of alkali in water is an exothermic process. In my previous video I told you about the dilution process कि अगर acid के अंदर हमें water add करना है तो that is also the exothermic process in which lots of heat is released. So dissolution of alkali, अगर आप किसी alkali के अंदर water डाल रहे हैं तो that is exothermic reaction, lot of heat is produced. So we have to take the precautions. Now what is next? Classification of bases, that is strong base and the weak base. I told you in the acid, strong acids are those acids which can completely dissociate, जो completely dissociate हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पूरे Na plus OH minus आयन बन जाएंगे, उन्हें हम strong base बोलते हैं. strong base के example हैं NaOH, KaOH and इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. weak base में we can say the base which dissociate partially or we can say incompletely. partially मतलब आधे जो होते हैं जो ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाते. डिसोसिएट मतलब ब्रेकिंग डाउन. जैसे आपने देखा ये Na से OH से Na प्लस OH माइनस, दिस इज द डिसोसिएशन प्रोसेस. आयनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसे. तो वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते. दैट इज वाई दे आर नोन एज द वीक बेस. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH whole twice and CaOH whole twice. So now what is next? So what do all bases have in common? कि सभी बेसिस के बीच में क्या कॉमन होता है? All bases have a common tendency to produce the hydroxide ions in aqueous medium. कि सभी bases में common tendency होती है कि they release the OH minus ion in water. Aqueous medium means we can say water. ये examples लिखे हुए हैं. NaOH जो है Na plus OH minus, KOH K plus OH minus, Ca2 plus, क्यों? इसकी वैलेंसी 2 होती है, OH minus. These we can see. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है? अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव इन नेचर मीन्स कि जो मैंने आपको मिनरल एसिड बताए थे दे कॉज द सिवियर बर्न. कोई भी एसिड HCl वगैरह जो है अगर स्किन पे पड़े तो स्किन हमारी कट सकती है, कपड़ा फट सकता है, तो कोरोसिव नेचर होता है. उसके बाद है एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे वाटर के अंदर वो डिजॉल्व हो सकते हैं. एंड इन एक्वस मीडियम एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर उसके अंदर एक्वस मीडियम पानी डाला जाएगा तो दे कैन ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. आपके जैसे घरों में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जो घर में बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इन एक्वस मीडियम दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. आपकी एक एक्टिविटी है
क्या एक्टिविटी है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हाउ हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। अब देखो एसिड में क्या कॉमन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज ऑल एसिड्स हैव अ कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ऑल एसिड्स हैव अ कॉमन टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, कि जो एसिड H+ आयंस रिलीज कर पाएंगे जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तभी जो है बच्चे वो एसिड कहलाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास एसिड्स में, मैं आपसे और बात करती हूँ कि मैं क्या बात करती हूँ, ग्लूकोज की बात करती हूँ। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अब उसके अंदर भी देखा जाए वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या अब वो ग्लूकोज के अंदर जो वाटर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या वो एसिड है? नहीं। अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अल्कोहल का फॉर्मूला उसमें पढ़ा था फर्मेंटेशन प्रोसेस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें इथानॉल बताया था आपको, इथानॉल C2H5OH। अब इसके अंदर भी OH है, तो क्या वो बेस हो गया हमारा? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो हमें इस एक्टिविटी से मिलेंगे कि सभी वो चीज़ें जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिड नहीं होते, सिर्फ वो वाले एसिड मतलब जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं होते, और वी कैन से सिर्फ वही एसिड हो सकते हैं विच कैन रिलीज दैट हाइड्रोजन आयंस, जो कि उन H+ आयंस को बाहर निकाल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। तो जो नहीं निकाल सकता ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करो तो इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं रिलीज होते, दैट इज व्हाई इट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड अंडर द एसिड्स। अब इसमें ये एक्टिविटी है कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से एसिड्स नहीं हैं। तो देखो एसिड्स में अभी मैंने आपको बताया इन एक्वस मीडियम एसिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कि एक्वस मीडियम में एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो बल्ब फ्लो कर सकते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी है बुक में भी, जिसमें आपने एक्वस सॉल्यूशन लेना है। टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपने कॉर्क लेके उसके साथ सेटअप लगाना है, 2 नेल्स कनेक्ट करने हैं, बैटरी कनेक्ट करनी है, बीकर लेना है, करंट लेना है। तो इसमें इस तरह से देखिए आपका ये सेटअप हो जाएगा। देख रहे हैं ये बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन ले रखा है एसिड का सॉल्यूशन, ऊपर कॉर्क लगा रखा है, वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि जो नीचे ग्लास है इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। इसमें 1 बाय 1 करके हम सॉल्यूशन लेंगे, जैसे हमने लिया HCl का सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, हम ये चेंज करते रहेंगे। तो पहले हमने जब इसमें लिया HCl का सॉल्यूशन, देखिए इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई, जब हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन लिया तो बल्ब ग्लो करा। दैट मीन्स कि इससे क्या पता लगा, बल्ब ग्लो करने से क्या पता लगा कि HCl ने क्या करा बच्चे, HCl ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, उसमें भी बल्ब ग्लो करा, उससे क्या पता लगा कि इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ग्लूकोज में हमने करा तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ, दैट मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला, उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कि ग्लूकोज और अल्कोहल ने नहीं करा और एसिडिक ने कर लिया। इसका क्या रीजन है? बिकॉज एसिड्स आयनाइज इन वाटर, आयनाइज वही बात हुई, डिसोसिएट, आयनाइज। एसिड्स जो है वाटर में डिसोसिएट होकर हमारा क्या रिलीज करते हैं, H+ आयंस। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनायंस। जैसे अब ये देखिए रिएक्शन दे रखी है कि HCl ने ये H+ आयंस रिलीज करे, H2SO4 ने भी H+ आयंस रिलीज करे, लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट आयनाइज, उन्होंने आयनाइज नहीं करे, हेंस दीज सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दस ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन do not ionize to give H+ ions, hence they are not acid. For example, glucose and alcohol contain hydrogen but are not acid. So alcohol और जो आपका alcohol solution है उनके पास हाइड्रोजन तो है, फिर भी हम उन्हें हाइड्रोजन होने के बावजूद भी हम उन्हें एसिड नहीं कहते। तो उसका क्या रीजन है? बिकॉज दे कैन नॉट आयोनाइज और दे कैन नॉट रिलीज, दे डू नॉट रिलीज द H+ आयंस इन वाटर। ये H+ आयंस को रिलीज नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की? फर्स्ट जो इसमें हम करेंगे, एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूस द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल एसिड में हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल में जिंक,
तो सॉल्ट बना ZnSO4, एक्वा सिंबल बार बार मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द सॉल्यूशन इन वाटर, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसे और एग्जाम्पल है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक क्लोराइड इज द सॉल्ट हेयर, ठीक है। डिफरेंट एसिड हमने ले लिया, मेटल हमने सेम रखी, दोनों में सॉल्ट डिफरेंट आया, बट कॉमन क्या चीज़ आई कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। वी कैन सी मोर एग्जाम्पल, एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि एल्यूमिनियम में जब हम एसिड्स को डिजोल्व करेंगे तो ये देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैग्नीशियम में भी इसमें दिखा रखा है, मैग्नीशियम के अंदर जब हम इसमें H2SO4 डालेंगे, MgSO4 प्लस H2। तो इन सब में क्या बात कॉमन हुई कि जब भी किसी भी मेटल के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। सो ये आपकी बुक में एक्टिविटी भी है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस का ये टेस्ट है। देखिए इस तरह से ये बताया हुआ है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हमने, तो उसमें से गैस पास हुई। आप देख रहे हैं ये जो गैस इसमें पास हो रही है, ये गैस आपकी पास होने पे यहाँ से ये गैस पास हुई हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से ये जाती हुई इधर आई। अब ये क्या है, दिस इज द सोप सोल्यूशन। जब इस सोप सोल्यूशन में ये गैस यहाँ पर आई, इसके बबल्स बनना शुरू हो गए और यहाँ पे ये बबल्स बाहर आए। यहाँ पे जब हम बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आए तो इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। दिस इज द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। हमने सोप सोल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्टली गैस पे करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, सोप सोल्यूशन लेने से सोप के बबल्स बनेंगे, उन बबल्स के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस होती है। सो आप इस टेस्ट को कैसे कर सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग दिस बर्निंग कैंडल। तो जब आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी इसमें आपने कि जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, बबल्स प्रोड्यूस हुए एंड दे आर द कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस। देखिए वो बबल्स जो थे वो कैसे थे, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, राइट। उसके बाद आया गैस इवॉल्व हुई जो कि हमने सोप सोल्यूशन में डाली, जिसमें कि आपकी वो गैस ऊपर आई, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई जब हम उस पर लाए। दिस इंडिकेट्स दैट द हाइड्रोजन जो गैस थी वो इवॉल्व हुई थी वो हाइड्रोजन गैस थी। जो कलर हो गया जिंक ग्रैन्यूल्स का, आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स ब्लैक एंड डल। जो जिंक ग्रैन्यूल्स का कलर हुआ वो आफ्टर द रिएक्शन कैसा हो गया, ब्लैक एंड डल। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट आफ्टर द रिएक्शन विच इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कि जब टेस्ट ट्यूब हॉट होगी रिएक्शन होने के बाद, दैट मीन्स उसमें से हीट रिलीज हुई, और जब हीट रिलीज हुई तो वो किस तरह का रिएक्शन हो गया बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसमें आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो मैंने आपको इसमें ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में बताई कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, ये एक्टिविटीज़ आपने पढ़नी है, इनकी ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस जो है आपने लर्न करने हैं और आपने लिखने हैं, क्योंकि बुक में सिर्फ एक्टिविटी दी हुई है, इन्फ्रेंस और ये ऑब्जर्वेशंस नहीं दी हुई। तो ऑब्जर्वेशंस ये ज़रूर आप नोट कर लेना। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, या दिस इज सफिशिएंट रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि जब हम एसिड के अंदर मेटल कार्बोनेट डालते हैं तब हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जब हम एसिड के अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तब भी हमारा क्या बनता है बच्चे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखिए, एसिड HCl लिया हमने, मेटल कार्बोनेट में सोडियम इज द मेटल, तो मेटल कार्बोनेट में Na2CO3 ले लिया सॉलिड, हमारा क्या बना, NaClCO2 प्लस H2। Now next question in mind comes in mind कि how you can test this presence of CO2 गैस, कि इस CO2 गैस को आप कैसे टेस्ट करोगे। सो देखिए और भी रिएक्शन दे रखे हैं, HCl प्लस NaSCO3। अब ये क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। फिर NaCl H2O CO2 गैस रिलीज हो रही है। फिर हमने रिएक्शन चेंज कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके दिखा दिया, सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सॉल्ट चेंज हो रहा है, सॉल्ट तो जो आप ले रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग वो बन रहा है, लेकिन कॉमन क्या चीज़ हो रही है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दोनों चीज़ें रिलीज हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन में रिलीज हो रही है। अब इसकी भी आपकी एक्टिविटी दे रखी है बुक में, ठीक है। आप एक्टिविटी देखना कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें भी देखिए ये रिएक्शन में हमने सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो
कौन सी गैस रिलीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। वो गैस हमने यहाँ पे ली और यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। तो जैसे ही ये गैस इसमें से पास होगी इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा। तो CO2 गैस का क्या टेस्ट होता है कि जब CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराते हैं इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्क के कलर का हो जाता है। तो ये इसमें ऑब्जर्वेशन आपने लर्न भी करनी है और रिएक्शन भी, कि जैसे अभी एक्टिविटी में कह रहा है कि टेक 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, Na2CO3 NaSO3 ये आपने ऐड करना है, ठीक है, और HCl डालना है आपने, और आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ एवरी एक्टिविटी इन केमिस्ट्री। देर आर activities and they are very much important and their observation and inference are very important. So write in your notebook also कि hydrochloric acid when react with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, brisk effervescence of a colorless odorless gas is observed. So this is the indication. पेपर में कई बार ये भी दिया होता है कि brisk effervescence are produces of colorless, तो आप brisk effervescence से समझ जाइए कि ये CO2 गैस की बात हो रही है। The evolved gas turns lime water milky. So this is the CO2 gas. This is a very important conclusion. वही रिएक्शंस आपने बताने हैं, फिर इसमें आपने बताना है CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर का फॉर्मूले में कैसे रिएक्ट होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स यू CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, कि ये हमारा लाइम वाटर जो बनता है ये लाइम वाटर है और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड अवॉइड, अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड करते जाओगे, उसमें से पास करते जाओगे, तो व्हाट विल हैपन, अवॉइड passing excess of carbon dioxide through the lime water as milkiness disappears due to the formation of the soluble calcium hydrogen carbonate CaCO3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि आप कॉन्टिन्यूसली CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते जा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद वो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देख रहे हैं आप, CaSO3O2। This can be asked in the exam also and it is very important, and in your book you can mark all these equations are provided. So this is the very important. So this is for today. I suppose it is sufficient for today. So what we have learned today, I just want to revise you that today in lecture I told you about the bases. Bases are those substances which can dissociate in water to give the hydroxide ion. Alkalis are those bases which are soluble in water, and dissolution of bases is the exothermic reaction. Strong bases, weak bases, strong bases which can completely dissociate into ions, and weak bases which incompletely, or we can say partially. And the example also we have studied the acid properties, sour taste, blue litmus to red, electrolytes, aqueous medium, they can conduct the electricity and they are the corrosive in nature. And with the activity also कि glucose and alcohol do not consider as an acid because they do not ionize, they do not release the H plus ions, right? कि all the acids which all the substances we can say that contains the hydrogen, it is not compulsory कि they are acids. Now reaction with metal, acid when reacts with metal, it will always produce the salt plus hydrogen gas. And how will you test this hydrogen gas? The test for hydrogen gas, the burning candle, it will produce the pop sound. The next is acid plus metal carbonates और acid plus metal hydrogen carbonate. कोई भी लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, salt plus carbon dioxide plus water. And how will you test this carbon dioxide gas? By passing lime water, it turns milky, CaCO3 will form. If you will passing excess of carbon dioxide through the lime water, milkiness disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate. So thank you dear students, have a nice day.